नंदन सर से हम जानिले कोडी सर बढ़िया स्टोरी फंक्शन लॉगारिथम एक्सपोनेंशियल प्लस सिग्नम फंक्शन इंटीग्रेटर लिस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ताले ये जो रिलेशन को नाक्सो को पढ़ा तमे सेकंड ईयर में इबड़ा तो देखो सुनो इबड़ा तो सेकंड ईयर तो कुछ असुविधा नहीं आप लोग पूरे पढ़ाई चला रहे हैं सोमेन पढ़ो ये माना तो यार सॉरी तो अब जाएगी क्वेश्चन पॉइंट पे और देखो हेडिंग लगाओ different types of functions different types of function तो एटा फर्स्ट इयर रहला एटा सेकंड इयर भी तम दरकार अलग अलग जो फंक्शन আছে तमर कोन लॉगरिथम फंक्शन बा एक्सपोनेंशियल हला ट्रिगोनोमेट्रिक हला अलजेब्रिक हला ई सब फंक्शन में से पढ़ि दवा अपना बुझियो चला फास्ट लिखो हेडिंग लिखो कांस्टेंट फंक्शन constant function देखो a function if such that a to b a function if such that a to b is said to be constant if every element of a if every element of a ये जो एक टा हमर मैप है जी a to b ताले a टा हमर कोन डोमेन सेट और b टा हमर कोन को डोमेन सेट है ना ताले a रो if every element of a have same image in b if every element of a have same image in b कौन होला ए सेट रे हमर जेतिटा भी एलिमेंट थिबो प्रत्येक एलिमेंट रो इमेज कोन गोटिए रे दिबो को बी रे बुझु ना अने कर हमर ए रे रहिला 1 2 3 4 रहिला सबुरो गोटिए इमेज रे दिबो बुझु ना नहीं सबुरो कोन हिबो गोटिए इमेज ताको हम कोन कांस्टेंट फंक्शन अब पहले हम केमिति डिफाइन करिया देखो एगोला डिफाइन करिया f of x equal to c ये लेकिन सर आपको f of x equal to c तो एगोला डिफाइन करिया तो हम तो फंक्शन हम एगोला लिखते ना नहीं y equal to कोन f of x ए लिखते ना x रो वैल्यू हिसाब रे y रो वैल्यू हमर आसीबो x रो वैल्यू पुट करिया पुट कला पर हम सॉल्व कला पर y रो वैल्यू आसीबो ताले f of x equal to c माने x रो वैल्यू मो जहां भी रही x रो वैल्यू 1 2 3 जहां भी रही तब f of x रो वैल्यू कोन आसीबो हमर से c आसीबो ना नहीं
x ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 -1 2 3 ଯାହା ବି ନେବି କଣ ଆସିବ ସେ c ଆସିବ ଚେଞ୍ଜ ହେବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ x ର ଯୋଉ ବି ଭ୍ୟାଲୁ ନଉଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି କଣ c ଯୋଉଟା କି y ର ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଆମେ x ଟା ଆମେ ଯୋଉ ଇନପୁଟ କରୁଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଡୋମେନ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯୋଉଟା y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯୋଉଟା ଏଇଟା b ସେଟ ରହିବ ସେଗୁଡା ଏହା ନାହିଁ କୋ ଡୋମେନ ସେଟ ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଯୋଉଟା ନେଲେ ସେଗୁଡା ହେଲା ଡୋମେନ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଲା କଣ ଆମର କେବଳ ଖାଲି c ଆସୁଛି ତ ସେଇଟା ଆମେ କହୁଛେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫଂକ୍ସନ ତାର ଗୋଟିଏ କଣ a ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଲିମେଣ୍ଟ ର କଣ ଆସିବ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଇମେଜ ଆସିବ ବୁଝିଲେ ନା ନାହିଁ ତ ଲେଖିଦେବେ ଏଠି that is f of x equal to c डोमेन कौन होगा रेंज कौन होगा ये जो फंक्शन का हम डिफाइन करते हैं डोमेन कौन होगा और रेंज कौन होगा डोमेन डोमेन हां ऐसे टोटल रियल नंबर है देखिए कौन होगा एक सदर ए टू बी ଯଦି ଖାଲି ତମେ ଏଟା କିଛି ଦେଇନଥିବ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା କରାଯାଉଛି କେଉଁ ଦଉଥିଲା ଏଇ ଫଂକ୍ସନଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ଡିଫାଇନ୍ ହଉଛି ଯଦି ଖାଲି ଆମର ଦେଇଥିବ ଫଂକ୍ସନ f of x equal to c ତାହେଲେ ଆମର ଡୋମେନ କଣ ହବ ଡୋମେନ ମାନେ କଣ x ଯଦି ଯାହା ଆମେ ଇନପୁଟ କରିବା ତାହେଲେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫଂକ୍ସନ x ସାଙ୍ଗେ କଣ କରିବୁ ସବୁଗୁଡା ଇନପୁଟ କରିପାରିବା ଏଇଆ ନା ନାହିଁ ଯାହା ବି ନେବା ଗୋଟେ ତ ଭଲ ଆସିବ କଣ ତାହେଲେ ଆମର ଡୋମେନଟା କୋଉଠି କୋଉଠି ହେଇଯିବ ମାଇନସ ଇନଫାଇନାଇଟ ରୁ ଇନଫାଇନାଇଟ ତ ତାକୁ ଇକ୍ୱାଲ କଣ ଲେଖିବା ଏଇଆ ନାହିଁ ତାପରେ ଇନପୁଟ କଲା ପରେ y ର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ପାଉଛେ ଆମେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଯାହା ବି ଆମର c ଜାଗାରେ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଥାଇପାରେ 3 ଥାଇପାରେ କିଛି ବି ଥାଇପାରେ ଆର୍ବିଟ୍ରାରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ c ଲେଖିଦେଲେ ଆଉ ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ୟାର ରେଞ୍ଜ କଣ ହେଇଯିବ এই ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲୁ ଆମର ତ y ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଗୁଡା ଆସିବ ସେଇଗୁଡା ଆମର ହବ ନା ନାଇଁ ରେଞ୍ଜରେ ତ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ନେଇଛେ କଣ c ତ ସେଇଟା କଣ ହେଇଗଲା ରେଞ୍ଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କଣ ହେଇଗଲା c ହେଲା ଏଇ ଫଂକ୍ସନଟା ଯୋଉ ଡେଫିନିସନ ଡାକିନି ଆର ଗୋଟେ କିଛି ଡାକିନି କିନ୍ତୁ କେମିତି ଡିଫାଇନ୍ ହେଇଛି କହିଦେବି ତମେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା ଏଟା ଯେମିତି ଆମର ଦେଖା ହେଲା ସେଟା କେମିତି କହିଦେବି ଆଉ ଖାଲି ଲେଖିବ କୋଉଟା ଏମିତି ଲେଖିବ ଆଉ ଠିକ ଲେଖିବ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିଦେଲ ଏଟା ତାପରେ ଆଗକୁ ଲେଖ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଫଂକ୍ସନ आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ता ना पढ़ना अरे आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ जाओ कौन है किसी पढ़ना हां सुबह नहीं रिलेशन पढ़ा है ना बोलो रिलेशन तो पढ़ा है और लोगों ने रिलेशन सारी फंक्शन टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ा है चलो हेडिंग लिखो आइडेंटिटी फंक्शन देखिलो हेडिंग लिखो आइडेंटिटी फंक्शन देखो आइडेंटिटी फंक्शन कौन कहू सुन दियो आइडेंटिटी फंक्शन होते या x ର वैल्यू जहां नेबा y ର वैल्यू भी सेया हबो बुझियो ना x ର वैल्यू जहां नेबा y ର वैल्यू भी कोन सेया हबो माने डोमेन सेट रो मन कर हमर एपटे 1 पहिला ये मैप हेतियो एपटे का सहित 1 सहित ही मैप हेतियो एपटे 2 थिले ये का सहित मैप हबो 2 सहित बुझियो ना नहीं ताले फंक्शन टा हम डिफाइन केमिति करबा देखो f of x इक्वल टू केते x x ର वैल्यू 1 नेले f of x ର वैल्यू केते आसीबो 1 x ର वैल्यू 2 नेले f of x ର वैल्यू केते आसीबो f of x इक्वल टू 3 नेले एरा नहीं ताले आकु कहबा हम कोन आइडेंटिटी फंक्शन बुझ पाइले ना बुझ पाइले नहीं एटा अरे बुझिला अरे ता ग्राफ करिया सबरो के ग्राफ के चेष्टा करियो मन रखा भाई होला तो x ର वैल्यू जतले 0 लेबा y ର वैल्यू केते आसीबो एटा हमर x एक्सिस हे गेला ताला y एक्सिस प्लस x ର वैल्यू 0 नेबे y ର वैल्यू केते आसीबो 0 ताले को कोनटा ए कोनटा 0.1 नेले से 0.1 তাহলে এই 0.1 এরপর সে এইটা 0.1 তাহলে এইটা 1 নেলা বেলে কোন y বি 1 2 নেলা বেলে 2 সে -1 নেলা বেলে -1 এরা নাই তাহলে এই বড় কারণটা জীবন নাই কইলো এই বড় জীবন নাই তাহলে আমার এটা 0 0 হলা 0 0 মোর এইটা সব এই বড় কারণ করো তাহলে লিখো এটা কোন y x লেখো বা f of x x গ্রাফ না বুঝলা এটা গ্রাফ করব
ଗ୍ରାଫ ଜାଣିଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଡୋମେନ ବାହାର କରିବାକୁ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଟା କରିଦିଅ ତାପରେ କର। ବୁଝିଲ এই গ্রাফের নামটা যাহলে মধ্যে লেখো না এই দুইটা ভিতরে করতে লেখো তাহলে লেখা সরলা তারপরে দেখো ডোমেন কো আর রেঞ্জ কো কোন গ্রাফ দেখি কো আরে ডোমেন নামে কো আসছে দেখিলা x एक्सिस है क्या x ର ଭ୍ୟାଲୁ ହିଁ ଆମର ତ ଡୋମେନ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ x एक्सिस ର ଡୋମେନ ଦେଖ y एक्सिस ର ରେଞ୍ଜ ଦେଖ କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗା କେତେ ଥିବ ଡୋମେନ କଣ ଆଉ ରେଞ୍ଜ କଣ ହବ କୁହ अरे डोमेन ଆମର କୋଉଠି କୋଉ ଜାଗା ଯାଇଛି x ର ଭ୍ୟାଲୁ माइनस इनफाइनाइट ରୁ ପୁରା इनफाइनाइट पର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ନା ନାହିଁ ସେମିତି ଯଦି ଆମର x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଆମେ ଯାହା ନେବା y ର ଭ୍ୟାଲୁ ସେଇଆ ପାଇବା ତାହେଲେ ଡୋମେନ ଯାହା ହବ ରେଞ୍ଜ ବି ସେଇଆ ହବ ହବ ନା ହବନି ତାହେଲେ ଆମର ଡୋମେନ ହେଇଗଲା କଣ ଅଲ୍ ରିଅଲ ନମ୍ବର ଆଉ ରେଞ୍ଜ ବି କଣ ହେଇଗଲା ଅଲ୍ ରିଅଲ ନମ୍ବର ଜାଣିଗଲା ନା ଜାଣିଗଲାନି ବୁଝିଯାଇଛି ଏ ଗ୍ରାଫ ଗୁଡାକୁ ମନେ ରଖିଦିଅ ହେଲା କରିଛି ତାପରେ ଲେଖା ଗୋଟେ polynomial function polynomial देखो f x equal to एटा स्कूल ले पढ्नु भयो polynomial equation जान ना जानो polynomial equation रो गोटे पार्ट हला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जोटी x रो पावर केते 2 माने ए n टा जोटी 2 हेतिबो सेटा हला कोन हमरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन n रो वैल्यू 1 हेतरे से हला कोन हमरो लिनियर इक्वेशन जोटा हम पढ लिनियर इक्वेशन पढिते ना पढने के लिनियर इक्वालिटी पढाइछ त ମୁଁ ପଢିଛି ତ हमर दादा जो लिनियर इक्वेशन कोन रहला x पाइला रहउची आ पावर केते रहउची 1 रहउची से सबले कोन हो लिनियर इक्वेशन ता सबले गोटे लाइन हो सबले लिनियर नै ता ग्राफ कोन हो सबले लाइन हो देखिरो पोलिनोमियल देखो तळु लिखा तारो this is called polynomial function of degree n this is called polynomial function of degree n parabola hyperbola सब पढ़ितो तो और जे लेखा जाउची तारे तळु एग्जांपल लिखलो f of x equal to 2x square plus 5x minus 9 ताले एटा जो एटा कोन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना नै से भी कोन पोलिनोमियल इक्वेशन रो गोटे ब्रांच बुझला ना नै ताले एरो डिग्री केते मोर डिग्री यार केते उल्टा हमर पावर जोटा बोलते सेटा हम कहे कोन डिग्री डिग्री लगे हमर यार हम पचारि जेबे f of 2 हो केते ए फंक्शन पई f of 2 कोन करिया हम जो जगह x अछि से जगह कोन पुट करबा पुट करबा ताले करा f हमर 2 into 2 रो स्क्वायर प्लस 5 into 2 minus 9 ये लगे थे 2 into 4 plus 10 minus 9 8 plus 10 minus 9 equal to लगे थे 9 कहला जाय जदी f of x equal to एती देखो ता ठीक है हम एटी पचाई एई फंक्शन पाई f of x minus 1 केता हो जो जगह रे x अछि एटा जेंति कोन जो जगह रे x अछि से जगह 2 पुट कर दला जो जगह रे x अछि सेठी कोन हम पुट करिया ताले के चले एटा कोन हम कहू केला ताले के चले बुझि पेला ना नै करि परिबे बढिया तापर आगु लेखो
कांस्टेंट फंक्शन जोड़े रहिला ग्राफ टा करे ना इन कोई साइड रे जगह जदी कर करे छुटेडा भी हम कर दो हला हला कांस्टेंट फंक्शन एटा करि परिया नहीं कहला f of x equal to 2 ये गोटे कांस्टेंट फंक्शन होबा ना होबनी f of x equal to 2 गोटे कांस्टेंट फंक्शन ना नहीं ताले f of x जा y हमर से ताले जो 2 टा वैल्यू कोन y रे वैल्यू x रे वैल्यू हम सब चेंज जहां भी करिया y रे वैल्यू केवल कोन आसीबो 2 आसीबो ताले y रे वैल्यू कोन करा एठी कितना 1 2 है ना ताले एरा ग्राफ कोन हो कोन सीधा बरा होला पैरेलल टू कोन x axis बुझला एटा हला पॉइंट 2 पैरेलल टू x axis x रे हला हम जते बढ़ेबा जते जहां भी कमेगा y रे वैल्यू सेही कोन आस्ती 2 ही आस्ती ना नहीं x रे वैल्यू मन कर एटा हला -1 y रे वैल्यू कोन एटा आसिला 2 ते माइनस इनफिनिट रे केटा आसिला 2 सेंटे एकोड आगु बोले केवल y रे वैल्यू कोन आसिला 2 अरे कांस्टेंट फंक्शन ग्राफ करि परिबो ना करि परिबो हबो तो सी हमर सी रो कोन ग्राफ हमर सी रो वैल्यू देखै पारे गोटे सी रो वैल्यू गोटे नै करिया पड़ियो सेति नै कोन 2 नै जेबी तापर लेखो और ओले गलो हमर n रो वैल्यू अलग अलग ना नै ग्राफ करि परिया n रो वैल्यू 1 नै अलग आसीबो 2 नै अलग आसीबो 1 नै कोन हबो लिनियर हे गेला गोटे लाइन हबो 2 हे गेले y = x स्क्वायर फॉर्म में आसीबो से गोटे पैराबोला आइबो 3 नेले अलग आइबो तो सब तारा अलग अलग तो हमें नहीं करि परिया ना तो n रो वैल्यू हिसाब रे हमको करियो पड़ो बुझला नै क्वेश्चन हिसाब रे तापर देखो इंपोर्टेंट एबड आइला हला ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये सब इंपोर्टेंट एबड जहां आसीबो सब इंपोर्टेंट ना मने रखिबो आता ब्रैकेट रे लिख दो कोन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ब्रैकेट रे लिख दो कोन स्टेप फंक्शन ब्रैकेट रे लिख दो स्टेप फंक्शन ठीक है यार डेफिनेशन रेडी लिखो होला the function f such that r to r real number to real number defined by f of x equal to x रो कोन ताले स्क्वायर ब्रैकेट और कोन ए बोला की प्रकार तार अछि ना डोट जा देखियो ए भाइलो एटा खाली कोन ऊपर रहइबो खाली तळे रहइबो येला तापर लेखो सेही x बिलोंग्स टू r लिखो x बिलोंग्स टू देखि तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कोन और सुनि दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो से कोन x बिलोंग्स टू r लिख दिना कोन x रहले हम कोन टोटल रियल नंबर सब नहीं परिए हला f of x रो वैल्यू कोन आछो सेटा रे बुझो ना एग्जांपल दे देखि कि जानि परिबो f of x x इक्वल टू माने करते 2.7 x इक्वल टू केता होची 2.7 तो x रो जेतले ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर करबा x रो ग्रेटेस्ट इंटीजर अरे 2.7 में कोन ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर माने हो सेया x रो वैल्यू सुन x रो वैल्यू जहा दिबो x रो वैल्यू जहा दिबो ताठू सानो जेते सब इंटीजर तुम देखन भाई इंटीजर माने सेटे पॉइंट हमर जीवन खाली 2 1 0 -1 -2 एगुडा फ्रैक्शन किछि जीवो नाही 2.7 होचे ताठू सानो जेते सब इंटीजर रहिला तांको भितरे जोटा सबुठु बड़ ना वैल्यू सेटा हो तो याडू जेते सब छोटिया इंटीजर अछि तांको भितरे सब बड़ कोडा हो 2 होबा ना नाही ताले यार आंसर कोन हो क्लियर ना नाही
ସେମିତି ଯଦି ଏବେ ପଚାରିବି x ଇକ୍ୱାଲ ମନେକର ଅଛି 2.9 ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଅଫ x କେତେ ହବ ଯଦି x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 2 ଅଛି ତାହେଲେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର କଣ ହବ ଏଇ 2 ହବ ଜାଣିଲା ନା ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ x ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଜର ହବ ତା ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ସେଇ ନିଚେ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ ଏବେ ଯେତିକି କଲା ଆମେ एग्जांपल ये कोन होला पॉजिटिव नंबर हमहु ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ସୁବିଧା ଅଛି 2.7 ସେ ତାର ସାନ ଯୋଟା ଆମେ ଏଟା ଲେଖି ଦେଉଛୁ ଜାନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ नेगेटिव नंबर ଯେତେବେଳେ ରହିବ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବ ନହେଲେ ନମ୍ବର ଲାଇନ୍ ଟିକେ ଡ୍ର କରିବ ନହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ x इक्वल ଯଦି ତମକୁ ପଚାରେ -1.9 ତାହେଲେ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର ଅଫ x କେତେ ହବ -2 ବୁଝିଲା ନା ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ପॉजिटिव ହେଇଥାନ୍ତା କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା पॉजिटिव ହେଇଥିଲେ 1 ହେଇଥାନ୍ତା ଜାନା ନାଇଁ ତ ଯେତେବେଳେ नेगेटिव नंबर ଆସିବ ଟିକେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରିବ ବୁଝିଲା ବୁଝି ପାଇଲେ ଏଟା ତ एग्जांपल लिखि दियो ଗୋଟେ x equal to 2.7 लिखि दियो ହେଲା ସରିଲା ଲେଖା ସରିଲା ତାପରେ ଏଟା ଗ୍ରାଫ କରିବ କରିଛି ହଁ ठीक है ठीक x ର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ 0 ଠୁ କଣ 1 ଭିତରେ ରହିବ ଦେଖ 0 लेस देन इक्वल टू ଅଛି 1 ରେ ଖାଲି लेस देन ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଆମର 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ଯୋଉ ବି ନମ୍ବର ନେବା ତାର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର କଣ ଆସିବ 0.1 ର କଣ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର 0 0.1.1 ର 0.11 ର ସେ 0 0.9 ର 0.999 ର 0 ତାହେଲେ 1 ହେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ 1 ହେଇଯିବ ଏରା ନାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି लेस देन 1 ତାହେଲେ f of x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ 0 ଆସିବ ନା ନାଇଁ ସେମିତି x ର ଭ୍ୟାଲୁ ଯେତେବେଳେ 1 ରୁ 2 ଭିତରେ ନେବା ତାହେଲେ f of x ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିବ ସେମିତି 2 ରୁ 3 ଭିତରେ ନେଲେ -1 ରୁ 0 ଭିତରେ -1 ରୁ 0 ଭିତରେ କଣ ହବ -1 ଏଇଟା ହେଲା 0 ଏଇଟା ହେଲା କଣ -1 ଏରା ନାଇଁ -1 ରୁ 0 ଭିତରେ ମାନେ ମନେ କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ନେଲି ଏଟା ମନେ କର -0.5 ଏରା ନାଇଁ यार ग्रेटनेस डिग्री ମାନେ ମତେ ଆଡେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଆସିବ ତାର ସ୍ଥାନ କୋଉଟା -1 ନା ନାଇଁ 0 ହେଲେ ଭୁଲ ହେଲା ନା ନାଇଁ ଏଇଟା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ନମ୍ବର ଆସିବ ଟିକେ ନମ୍ବର ଲାଇନ କରିବ ବୁଝିଲା ତାପରେ ସେମିତି -2 ରୁ ଯେତେବେଳେ -1 ଭିତରେ ରହିବ କଣ ହବ -2 -3 ରୁ -2 ଭିତରେ କଣ ହବ -3 ଜାଣିଛି ନା ଜାଣିନି ଏଇଟା ଯୋଉ ଟେବୁଲଟା କଲେ ଏବେ ଜାଣିଛି ତ ତାହେଲେ ଦେଖ ଗ୍ରାଫ
देखो x ର ভ্যালু 0 ରୁ 1 ভিতরে আমার f of x ର ভ্যালু কেতে আসছে 0 এনা নাই তাহলে x ର ভ্যালু মই 0 নেলি 0 আসিলা পাইলে তাহলে পয়েন্টটা কোথায় হবে সেইটা এনা নাই এটা লেখা যাবে না গুগল ওরা ওরা কি হবে দেখো और 0 ରୁ 1 ଭିତରେ ଆମେ ଯାହା ନେବା x ର ଭ୍ୟାଲୁ ମାନେ 0 ନେଲେ 0 ଆସିବ f of x ର ଭ୍ୟାଲୁ ତାପରେ 0.1 ମିଳେ କଣ ଆସିବ ସେଇ 0 ମାନେ y ର 0 ମାନେ କଣ ସେଇ x axis ଉପରେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ନା ନାହିଁ अरे x axis ଉପରେ ସେ ପଏଣ୍ଟ ରହିବ ନା ନାହିଁ ଯଦି 0.5 ନେଲେ ସେଇ 0 ସେଇ ଟୋଟାଲ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ମୁଁ 0 ରୁ ପୁରା ଏଇ 1 ରୁ ଟିକେ ପଛକୁ ମାନେ କଣ 0.9999 ପୁରା 1 ରୁ ଟିକେ ছোট সেই পর্যন্ত যে ভ্যালু নেকি যাই y এর ভ্যালু কোন আসিব সেই 0 আসিব 0 আছে মানে কোন গ্রাফ এই কোন x axis উপরে রহিব না নাই এই গ্রাফ এই x axis উপরে রহিব না নাই তাহলে এই 1 যেহেতু যাও নাই সেপটে আমি দেই দেবা কোন অল্লো দেই দেবা এপটে সলিড সলিড মানে 0 যাଉଛି 1 টা আমার দিব না তারপর দেখো 1 ରୁ 2 বেলে 1 ରୁ 2 বেলে কোন হবো আমার ভ্যালু 1 ରୁ 2 বেলে কোন হবো 1 হবো তাহলে যেতବେଳେ x ର ভ্যালু 1 নেলি y ର ভ্যালু কোন ହେଲା 1 তারপরে x ର ভ্যালু ধর 1.1 y ର ভ্যালୁ কোন সেই 1 তাহলে 1 ରୁ 2 ଯାଏ ଯାହା ବି ନେବି ଭ୍ୟାଲୁ সেই কোন y ର ଭ୍ୟାଲୁ কোন ଆସିବ 1 ଆସିବ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗାର ଆମର ଏତିକି ହବ ନା ନାହିଁ 2 ଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବନ 2 ଟା ହେଇଗଲେ କଣ 2 ହେଇଯିବ ତ 2 ଟା ଆମେ ଦେଇଦବା କଣ ଅଲ୍ଲୋ ଦେଇଦବା ସଲିଡ କରିବା ବୁଝିଲା 1 ଆମର ଏଠି ଯାଉଛି ତ ସେମିତି 2 ଯେତେବେଳେ 2 ରୁ 3 ବେଳେ 2 ହେଇଗଲା ଆମର f of x କେତେ ହେଇଯିବ 2 ହେଇଗଲା ଏରା ନାହିଁ 2 ରୁ 3 ହେଇଗଲା ଏରା କଣ ବୁଝିଲା ବୁଝିବନି ଗ୍ରାଫଟା ସେଇଠି ଦେଖିବ ଟେବୁଲ କୁ ଗ୍ରାଭିଟି କରିଦେବ ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ତାର ସେମିତି ଏପଟକୁ ଯାଅ 0 ରୁ -1 ରୁ 0 ଭିତରେ କେତେ ଆସୁଛି ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଲା ଭ୍ୟାଲୁ -1 -1 ମାନେ କଣ ଆସିବ ଏଇଭଳିଆ ତାହେଲେ ଏପଟେ ରହିବ ହଲୋ ଏପଟେ ରହିଲା କାରଣ 0 ରେ ଆମର 0 ହେଇଯିବ ଏରା ନାହିଁ ତାପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଏଇଠି ये सीधा करता है कहीं हो रहा लिख दे तो ये ना स्टेट फंक्शन कौन है सीडी बोले आगे चला नहीं तो भाई आना हला कौन ये मन रखो नहीं कारण आउट ऑफ लिस्ट इधर लेटेस्ट माने सामने और कड़ा मन तो रेड ना बड़ा क्या ତାପରେ ଇଏ ଗ୍ରାଫ କଲା ପରେ ଡୋମେନ ନେଇ ଲେଖ ତାର ସରଲା ଗ୍ରାଫ ତାର ଡୋମେନ କଣ ଆଉ ରେଞ୍ଜ କଣ ହବ ଦେଖିକି ଲେଖ ଗ୍ରାଫ ରୁ ଦେଖିକି ଲେଖ ଡୋମେନ କଣ ଆଉ ରେଞ୍ଜ କଣ कंप्लीट दे दो आयो माने तो
जेड के आप देखिए बोलो जेड के हमें चाहिए अरे डोमेन कौन होला रेंज कौन होला डोमेन होला कौन रियल नंबर रेंज हां देखो ग्राफ रे देखो x रो वाला सब नै जना नै माइनस इनफिनिट रे इनफिनिट पर्यंत सब नै परिया ना नै परिया किंतु अब नेला पर हमर f of x पकाउ जे ए वैल्यूटा कोन कोन सब 0 1 2 -1 -1 सब कोन आछि इंटीजर गुडा आछि ना नै हमर रेंज कोन हे जिवो जानि रहा नै बस लेखा सब समझाओ तापर हेडिंग लिखो लिस्ट इंटीजर फंक्शन list integer function list integer f of that r to r f of x equal to greatest integer function उल्टा रहउचे एटा बुझियो जे नै greatest integer माने कोन अगर हमर x वाला हम होतले 2.7 ताला greatest integer केटा होतला 2 होतला तो यार लिस्ट इंटीजर केटा हो 2.7 न बुझियो नै या तो जो बड़ इंटीजर ता सेटा बुझियो नै ताले लिखो एग्जांपल लिखो एटा दो ब्रैकेट हमरा देखियो हमरा हमर एटा देखियो बुझला तो एटा प्राय दायर एटा इजी दिबो लिस्ट इंटीजर ପାଇଁ एटा ही यूज करबो then the minus 0.5 रो लिस्ट इंटीजर केटा हो रे या ग्राफ ला नीचे करिवो टेंशन टेबल करले घर कर परियो या ग्राफ कर परियो ना कर परियो सेही बळे आबो लिस्ट एक फंक्शन बळे आबो बुझियो ना परियो एटा करे ग्राफ यार करिवो हां यार डोमेन और रेंज कोन हो हां सेही सेम ही हो बुझियो ना नहीं लिखि दियो डोमेन इक्वल टू r रेंज इक्वल टू z और जी जाने जो दीटा ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर इधर कंफ्यूजन बंद ताको देखो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ठीक है हां तो f of x equal to x दिबोटे कर्ली ब्रैकेट बुझला ताले फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ता कोठी आछि देखो अन्य करा हम ओटे रियल नंबर x नेले बुझला ए रियल नंबर ता सबोले ओटे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तारी प्लस तार कोन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन तो समान ए जे तळो लिखि देटा लिखि दो लेट x be a real number let x be a real number x equal to greatest integer of x plus fractional part of x greatest integer of x plus fractional part of x बुझला ताले 2.7 जो 8% दिला होला देखो ताले यार फ्रैक्शनल पार्ट केटा हो फ्रैक्शनल पार्ट हमर यार लिखि परिया ना नहीं ए जो लिखि जे एटा
इधर लिखि परिया फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिखि परिया ना नहीं तो गोटे लिखि दो इंटीजर देख x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इक्वल टू हेला कोन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ताले हमरा 2.7 न जदि हमें फ्रैक्शनल पार्ट बाहर करिया कोन हो कितना हो 0. मन रखो जेतेबेले नेगेटिव नंबर आसीबो ओइ सुंदरी नेगेटिव नंबर आसला बेले डायरेक्ट करिवो नाही पॉजिटिव नंबर बेले डायरेक्ट देखि दउ 0.7 नेगेटिव नंबर आसला बेले ए फार्मूला को बाहर करिवो जा आसीबो बुझो जी गोटे करिया से नेगेटिव नंबर को डायरेक्ट लिखि दियो इतना बोले लिखि दियो लिख लो इटा लिखि दो ना नहीं समझते 0.7 এটা ফর্মুলা এটা লিখলে x মাইনাস x এর ভ্যালু এটা কত 2.7 তাহলে x মাইনাস গ্রেটেস্ট ইন্টিজার অফ x এই 2.7 মাইনাস এর গ্রেটেস্ট ইন্টিজার কত 2 রইলা কত তাহলে বুঝিলা তারপরে সেটা x এর ভ্যালু নিও -1.7 তাহলে ফ্র্যাকশনাল পার্ট অফ x বার করে মতে পাইলো जीरो मान निकल वन भी नंबर है ना जीरो लेस देन इक्वल टू नेगेटिव होबनी कि कोन 1 टू बड़ भी होबो नाही এই ফর্মুলা হবো না এটি x এর ভ্যালু দেই দিলা কেতে -1.7 তাহলে গ্রেটেস্ট ইন্টিজার অফ x কত হবে বলো আরে গ্রেটেস্ট ইন্টিজার অফ x কত হবে -2 -2 তো তাহলে ফ্র্যাকশনাল পার্ট অফ x এগুলা কোন x মাইনাস গ্রেটেস্ট ইন্টিজার অফ x তাহলে এগুলা -1.7 -2 এগুলা -1.7 + 2 ইকুয়াল এগুলা কত 0.3 বুঝলা দেখি দাও এই ফর্মুলাটা পকাই লেখো ডাইরেক্ট লিখিওনি এই ফর্মুলা পকাই লিখিও হয়েছে লেখা সমস্যা হইলা তলে গোটে নোট লেখো নোট লেখো 0 less than equal to fractional part of x less than 1 0 less than equal to fractional part of x less than 1 सबले पॉजिटिव हबो कोन 0 रु 1 भीतर रहइबो 1 हबो नाही 0 किंतु हेई पारिबो केमिति देखो जति गोटे नेबा कोन x ର वैल्यू 2 नेबा गोटे कोन इंटीजर जेते नै जा x ର वैल्यू कोन गोटे इंटीजर नै जा तार फ्रैक्शनल पार्ट किछ रहइबो की रहइबो पॉइंट आसिला माने हमर फ्रैक्शनल पार्ट आसिला पॉइंट नाही किछ फ्रैक्शनल पार्ट आसिला किछ नाही बुझला ना नहीं तो जेते हमर x ର वैल्यू गोटे इंटीजर हे जिवो सेते तार कोन फ्रैक्शनल पार्ट केते हे जिवो 0 बुझला निकला नोट रे हमरे ग्राफ पता है यार अब डोमेन में आपको ग्राफ पे जाना देखो তাহলে x ର ভ্যালু কোন হইলে যাহা भी নেবা सब बेले हमरा कोन रहइबो केउडा 0 ରୁ 1 ভিতর रहइबो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कोन 0 নেছি তাহলে তার f of x কত হবে সব फ्रैक्शनल पार्ट কত হবে সেই 0 হবে इंटीजर যে 0.1 র फ्रैक्शनल पार्ट कत हबो 0.1 रो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन केते हबो से 0.1 0.2 रो 0.2 0.3 रो 0.5 रो 0.9 रो 0.9 1 रो 1 रो 1 ना शाबाश 0 बुझला
मान कौन है पुणी 0 ताले हम ग्राफ पाइले x रो वैल्यू धीरे धीरे तो बढ़े बढ़े जाउते ये सही हिसाब रे कोन y रो वैल्यू सही आउत ना नहीं 0.1 ने लाडो y रो वैल्यू सही 0.1 0.9 ने लाडो कोन 0.9 0.99 से सही हबो 1 हे लाडो पुणी 0 हे ताले एई ग्राफा एई बडा दीप जोड 1 हबो सेठी कोन पुणी 0 ऊपर आसे ए नाही किंतु 1.1 नो केते हबो फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 1.2 रो 0.2 सिंधु 1.9 रो 9 2 रो 0 तो यार में 8 में सेमती जीव कोन जोठी 8 पहुंच गला पुणी 8 को गसिला बुझला ना नहीं ये भी सेमती वाला बुझियो ना बुझियोनी 1 हबनी किछि हला ए 1 ऊपर सब बड़ा हलो रखिरो सब बड़ा एगो सॉलिड रे 0 सॉरी माइनस 0.1 का केतो माइनस 0.1 रो 0 अबे बोलबा नेगेटिव टर्म दे देखिबा त माइनस 0.1 ने ए जाय रहछि तार आसीबो कोन 0.9 और माइनस 1.7 न कोन आस्तला माइनस माइनस 1.7 प्लस 2 केना नहीं तले कोन आइ 0.3 नहीं माइनस 0.1 रो बेटर कियो केते हो माइनस 1 ना नहीं ताले माइनस 0.1 प्लस प्लस 1 केते हो 0.9 तो यार गांधी सही बोला सारी जीरो जीरो नहीं ग्राफ एइबा रहबो नेगेटिव हबो नाही त डोमेन और रेंज केते हो कहलो डोमेन माने x रो कोन कोन नहीं परिया कोन रियल नंबर तो और रेंज कोन हो 0 रो 1 1 कोन रहबो ओपन 0 रहबो कोन तो बॉक्स नहीं मोगे नहीं काय तो बंद कर बस काय करबो एटा बुझिला नहीं हां ग्राफ ला मन करियो ना मन करियो ग्राफ मन करियो चेष्टा करियो तो पारबे तो तार ऑप्शन हैला अब देखो f of x equal to x आइडेंटिटी फंक्शन सेटा मन करियो ना मन करियो पूरा f of x equal to x आइडेंटिटी फंक्शन मन करियो तापर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ताकि मन करियो आवश्यकता कम पड़ियो बोले पड़ता है हैला तो ग्राफ दरकार पड़ियो ने डोमेन ये दरकार पड़ियो ले फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ वैल्यू टा कोन कोन होबो आ से फार्मूला टा ता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस कोन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एटा टी मन रखी तब देखो मॉड्यूलस फंक्शन ए मॉड्यूलस कितना तो जानते हो समझते है ना देखो f of x equal to mod of x f of x equal to कोन mod of x x रो वैल्यू पॉजिटिव नियो कि नेगेटिव नियो जहां भी नियो mod x सबले कोन हबो पॉजिटिव एटा जानते ना जानो एटा जानते ना তাহলে x रो वैल्यू -1 নেবা f of x কেতে হবো +1 তাহলে মডুলাস অফ x কেমিতি ডিফাইন করা হবে দেখো এর দুইটা হবে গোটা আসো x আর গোটা আসো কোন -x x কেতে বেলা হবো যেতে বেলে x रो वैल्यू কোন ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -x केते बेले जेते बेले x रो वैल्यू कोन लेस देन 0 टा लिखि दियो तब बुझे कोन -x सार तो कहउछथि कोन पॉजिटिव आसीओ -x केमति लिखिले अरे -x लिखिले केमति तो पुर पछरियो ना पछरियो सब हेले हमर पॉजिटिव हो तार -x लिखिली कोन पर देखा सर देखो তাহলে x ର ভ্যালু গোটে পুଅ গোটে পজিটিভ পুଅ তাପରେ গোটে নেগেটিভ পুଅ কারণ ଆମର দুইটা কন্ডিশন ଅଛି গোটে 0 টু বড় ଅଛି ଆଉ গোটে কোন 0 টু ছোট ଅଛି তাহলে দুইটা কন্ডিশন পুଅ গোটে পজিটিভ নম্বর প্রথম আমি সেটা যোটা কইছো পুଅ 99 তাহলে তা মডুলাস কেতে হবে সরি 99 মানে আমরা কোন 0 টু বড় না নাই আরে 99 মানে 0 টু বড় তাহলে তা ভ্যালু কোন আসিব x মানে সেই কোন তাহলে সে গোটে নেগেটিভ নম্বর কইলো माइनस
କେତେ ନମ୍ବର କଣ ହଉଥିଲା ତ ଖୁସିରେ ମାଇନସ କଣ 110 ଏ ତ ତାହେଲେ ଇଏ କଣ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ ଯଦି ଅଛି ତା ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଆସିବ -x ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ନେଇଛେ କଣ ଆମେ -110 ତାହେଲେ ମାଇନସ ଅଫ ମାଇନସ କଣ 110 ହେଲା କାରଣ ଏଇଟା ମାଇନସ ଅଫ ଏଠି ବାହାରେ ଅଛି ଏରା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମାଇନସ ମାଇନସ କଣ ହେଇଗଲା ପ୍ଲସ ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମର ଯୋଉ mod of x ଆମେ ଯୋଉ ଦିଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଲେଖିଛେ ଆମେ ତାହେଲେ x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଜିଟିଭ ନେଲେ ସେ ପଜିଟିଭ ଆସୁଛି ନେଗେଟିଭ ନେଲେ ବି ନେଗେଟିଭ ନେଗେଟିଭ କଣ ସେଇ ପଜିଟିଭ ହେଇଯିବ ବୁଝିହେଇଛି ନା ବୁଝିହେଇନି ବୁଝିହେଲା ତାପରେ ତା ଗ୍ରାଫ ଦିଅ କଣ କଣ ଟାଇମ ହେଇଗଲା କପିଅ ଗୋଟେ ସରିବ ଗ୍ରାଫ ସରିଗଲେ ଯିବନି ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିଲା ହେଲା f of x equal to x ର ଗ୍ରାଫ ମନେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଖାଲି x ଡାଇରେକ୍ଟ ଦି ବାର ବାଡି ଦେଇଛି ଆଉ ଏତ କଥା ତାହେଲେ କଣ ଖାଲି ପଜିଟିଭ ନମ୍ବର ଯାହା ଥିଲା f of x ଯୋଉ equal to x ଥିଲା ତାର x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପଜିଟିଭ ପାଇଁ ଯାହା ହଉଥିଲା ଏଠି ପଜିଟିଭ ପାଇଁ ସେୟା ହବ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି କୋଉଠି କେବଳ ନେଗେଟିଭ ପାଇଁ ବି ପଜିଟିଭ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଥିଲା ନେଗେଟିଭ ହଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେଠି ଗ୍ରାଫଟା କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଥିଲା ଏଇଭଳିଆ ହେଇଥିଲା ଏରା ନାହିଁ ତାହେଲେ ପଜିଟିଭ ପାଇଁ ସେ ପଜିଟିଭ ରହିଲା କିନ୍ତୁ ନେଗେଟିଭ ପାଇଁ ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ ପଜିଟିଭ ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ଏଠି ରହିବା କଥା ସେ ଆସିବ କୋଉଠି ଏଠି ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ମିରର ପକେଇ ଦବା ଭୋଲ୍ଟେଜ ଦବ ବୁଝିଲା ଆରେ ମିରର ପକେଇ କଣ କରିବ ତାକୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ ଦବ ତାହେଲେ ନେଗେଟିଭ ନେଲା ବେଳେ ବି କଣ ଆମର y ର କଣ ଆସୁଛି ପଜିଟିଭ ବୁଝିଲା ନା ବୁଝିଲାନି ଆରେ अरे ये बड़ा हम वो 0 0 दे दियो ये ना f of x equal to mod x x वाले जो -1 नौजो तो mod of x केते +1 एठी आसी बुझला ना बुझलानी अरे यार डोमेन और रेंज केता हो कहलो डोमेन कोन होला रियल नंबर और ये रेंज कोन होला 0 to infinite देखो पॉजिटिव रियल नंबर सब नेचुरल नंबर देखले 0.1 जीवो अरे 0.1 जीवो कि जीवो ना कारण एटी ग्राफ में 0.1 भी अछि एरा नहीं की थाउ वो समस्या क्लास करना ना केते दादा में तो क्लास कॉलेज नहीं पढ़ फोन तो डिस्प्ले ये भूल भाल जिन सब हुआ है आलू साइड पे ये थोड़ा दरकार ଥିଲା ହେଲା अबे राहुल ना मैं पार्टी से राहुल ना हां हम करू छु कोन नहीं
ତୁ ଏତିକି ଶକ୍ତି ବେଳେ ଜନ୍ମରୁ ସେଇଆ କ୍ଲିୟର